Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Ma'am. Good afternoon. I hope everyone is fine at Good home. afternoon, ma'am. Yes, ma'am. Good. Okay, let's start with our session. Okay, tell me what we had discussed in a previous session. What we had discussed in the previous session. Anyone? What we had discussed in the previous session, in previous class. Yes, Mani? Yes, good afternoon. Good afternoon. Anyone? Yes, ma'am. We discussed learning techniques in ML. Learning techniques. Which learning technique we had discussed? We discussed the 4 types: multitasking learning, Yes. active learning, online learning, and ensemble learning. In previous lecture, we had discussed about the multitask learning. ठीक है ना, जिसमें हमने एक ही इमेज जो थी ह्यूमन बीइंग और एनिमल की लेके दोनों को एक ही सेम टाइम पे फाइंड आउट करने के लिए बोला था. यस, अगर आपको याद हो. Yes, ma'am. लाइक ये वाली इमेज हमने की थी. दिस इज द, इस इमेज को हमने डिस्कस किया. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द मल्टीटास्क लर्निंग. देन आफ्टरवर्ड्स ऑनलाइन लर्निंग ये हमने डिस्कस कर चुके हैं. इंसैम्बल लर्निंग, एनीवन? मनी नहीं बोलेगा. उसके अलावा इंसैम्बल लर्निंग में कौन से 2 मेथड्स यूज होते हैं? which two methods are used in ensemble learning? Ma'am, bagging and boosting. Good. Bagging and boosting are the 2 methods which are used in ensemble learning. Yes. In previous lecture video, we had discussed multitasking, online learning, and ensemble learning. And ensemble learning contains the 2 methods. One is the bagging and second is the boosting. These 3 techniques are clear to everyone? Yes, these 3 techniques are clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay, let's move to the last technique, that is the active learning. Okay, last technique is the active learning. Now, active learning, anyone? Active learning. In this session, first we will discuss about the active learning, then afterwards the sequence prediction. Okay. Now, active learning क्या होती है? कोई बताएगा? Ma'am, the word active suggests like there should there I mean some kind activeness. एक्टिवनेस. ओके, मैं आपको एक इमेज दिखाती हूँ. लाइक दिस इज द मेन वर्किंग एज जो हम मशीन में काम करवा रहे हैं. दिस इज आवर रॉ डाटा. दिस इज आवर रॉ डाटा. लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज अवेलेबल विद अस. ओके, एंड we send it to the user, to the expert to label that data. Yes or no? एक डाटा है मेरे पास जिसके अंदर लिखा है कि एनिमल्स के वेरियस फीचर्स दे, जहाँ ह्यूमन बीइंग के कोई वेरियस फीचर्स प्रोवाइडेड है कि अगर आपकी 2 आईज हो, 2 ईयर्स हो, एक लिप्स हो, नोज हो, तो आपने कहना दिस इज अ ह्यूमन. ओके, तो वो फीचर्स का जो वैल्यूज है वो कौन लेबल करता है? ह्यूमन ही लेबल करता है. टेबुलर फॉर्म में ह्यूमन ही लेबल करता है. यस और नो? Yes, ma'am. Large data is with us. Labeling is done by the oracle or some expert person. We can say any expert person. Okay, and that label data then sent to the machine, and then machine is trained according to that. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, I think this image is clear to everyone कि हमारे पास क्या होता है. हम जो लर्निंग टेक्निक यूज कर रहे हैं, जैसे हम वर्क कर रहे हैं, हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है. उस डाटा को हम एक्सपर्ट के पास भेजते हैं. एक्सपर्ट लेबल दैट डाटा एंड दैट लेबल डाटा इज सेंड टू द मशीन फॉर ट्रेनिंग. ओके,
इस तरह हमारी एग्जीक्यूशन होती है इन द केस ऑफ पैसिव लर्निंग, जो हम प्रीवियस टेक्निक यूज करते हैं. बट विद द हेल्प ऑफ द एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? लिसन, वी हैव द लार्ज अमाउंट ऑफ लेबल डाटा. लेबल डाटा में से जो एक्टिव लर्निंग टेक्निक यूज करेगा, दैट विल सिलेक्ट ओनली द रिक्वायर्ड लेबल डाटा, अनलेबल डाटा. पैसिव लर्निंग में क्या हो रहा था? इन द केस ऑफ पैसिव लर्निंग, होल्ड unlabeled data, whether it is relevant to the user or not, it is sent to the expert. But with the help of active learning concept, from the large amount of labeled data, only the required data is sent for labeling. Okay, is sent for labeling, and then expert or any oracle person will label that data and then send to the machine for training. That is the active learning. Clear? Concept is clear? Yes, ma'am. Shall I explain it again? I understood, ma'am. समझ लग गया बाकी सबको? Yes, ma'am. समझ लग गया है. ओके, अगर समझ लग गया है तो कौन बताएगा मेरे को? Yes. Who will explain it? मैम कि ऐसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, जो रिक्वायर्ड डेटा होता है वही वो एक्सपर्ट को पास करता है, अनयूजुअल डेटा को पास नहीं करता वो एक्सपर्ट को. पैसिव लर्निंग में पहले में क्या था? सारा डाटा जो अवेलेबल है उसको, ये वाला, इसमें क्या था कि जितना भी लारा डाटा है वो सारा का सारा अनलेबल डाटा इज पास टू द यूजर. और यूजर का कितना टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें? वो सारा Yes, जैसे लैक्स में डाटा लैक्स में लेबल करेगा, इससे टाइम एफिशिएंसी कम होगी, तो लेबल डाटा को टाइम लगेगा, मशीन की एफिशिएंसी कम होगी, एक्यूरेसी कम आएगी. ठीक है, तो एक्टिव लर्नर क्या होगा? ओनली डिजायर्ड डाटा विल बी पास टू दैट. ओके, नाउ this image is visible to everyone? This slide or image is visible to everyone? Yes or no? Visible? This slide or image is visible to everyone? Yes, Rahul, this image is visible? Yes, ma'am. Yes. तो बात सुनो बेटा, एक्टिव लर्निंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई. क्या किया गया कि जब भी मशीन वर्क करना स्टार्ट करती है, स्टार्ट विद द लेबल डाटा. दिस इज द लेबल डाटा विद दैट द मॉडल के पास लेबल डाटा है, जिसमें लेबल डाटा स्पोर्ट्स का है, लेबल डाटा न्यूज का है, लेबल डाटा एंटरटेनमेंट का है. ओके, नाउ देयर इज रिक्वायर्ड ऑफ सम न्यू डाटा ऑल्सो, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सम न्यू डाटा ऑल्सो. तो क्या करेगा, ये जो मॉडल है वो एक्टिव लर्नर के पास जाएगा. एक्टिव लर्नर क्या करेगा? ओनली रिक्वायर्ड इंटरेस्टेड डाटा अनलेबल डाटा सेट में से फाइंड आउट करेगा. अनलेबल डाटा सेट तो कुछ भी है, फेसबुक पे जितना डाटा पड़ा है, आप व्हाट्सएप पे यूज करते हो, जितने वेब पेजेस हैं, वो सारा क्या है? हमारा अनलेबल डाटा. वो अनलेबल डाटा जो है ना यहाँ पे पड़ा है, और कौन यूज कर रहा है उसे? एक्सपर्ट यूज कर रहा है उसे, लेबलिंग के लिए यूज करता है. ठीक है, तो जो हमारा एक्टिव लर्नर है, एक्टिव लर्निंग टेक्निक क्या करेगी? उस रिक्वेस्ट करेगी इससे कि मुझे अनलेबल्ड डाटा को लेबल कर दो. जो इतना डाटा पड़ा है अनलेबल, उसमें से जो मुझे रिक्वायर्ड है वो लेबल कर दो. और वो लेबलिंग करके जो हमारा अमाउंट ऑफ स्मॉल डाटा, उसको लेबल डाटा यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा फॉर द फर्दर एग्जीक्यूशन. वही जो मैंने आपको पहले बताया. दिस इज अनदर एग्जांपल. क्लियर? यस? Yes, ma'am. Yes, this is very easy concept. Now let's move to the sequence prediction. सीक्वेंस प्रेडिक्शन, जो मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ ना, ये क्या है? बेसिकली मेथड्स हैं अलग अलग कि किस तरह हम अपने सिस्टम की, हमारे मॉडल की एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं.
how we can increase the efficiency of our machine. Okay, now sequence prediction. Sequence prediction is another concept or another technique which is used in machine learning. It is basically used for the text data, and it is basically used in implementing the text information in the sequence order. Like, for example, I have input the 1, 2, 3, 4, 5. Okay, now I will ask the machine or model, tell me what will be the next number. जैसे अगर आप प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हो तो आप नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज की प्रेपरेशन की होगी आपने पेपर के लिए, यस और नो? ठीक है ना, अल्फाबेट सीरीज होती है हमारे पास, न्यूमेरिक सीरीज होती हैं मैथ्स में, तो उसमें होता है ना कि 3-4 नंबर दिए होते हैं, बाद में क्वेश्चन मार्क दिया होता है, तो आप बताओ कि ये इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, होता है ना ऐसे? Yes, ma'am. लाइक एक सीरीज कोई भी प्रोवाइड है कि 2, 4, 6, क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, यू हैव टू फाइंड आउट, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है? और आप क्या, व्हाट विल द आंसर इन दिस केस? 8, ma'am. 8, एज यू नो दिस इवन नंबर एग्जीक्यूट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे 8 नंबर है। उसी तरह अगर कोई सीक्वेंस कैलकुलेट करनी है या टेक्स्ट डाटा के ऊपर सीक्वेंस इंप्लीमेंट करनी है, तो वी यूज द कंसेप्ट ऑफ द सीक्वेंस प्रेडिक्शन। लाइक फर्स्ट वी विल गिव द सीक्वेंस ऑफ इनपुट टू द यूज मॉडल को सीक्वेंस दे देंगे और समझा देंगे कि इस तरह सीक्वेंस आएगी। अब नेक्स्ट मॉडल क्या वैल्यू होगी, दैट प्रेडिक्शन शुड बी डन बाय द मशीन। हमें मशीन बताए ट्रेनिंग के टाइम पे और टेस्टिंग के टाइम पे द आंसर शुड बी द 6। ओके, क्लियर? What is the sequence prediction? What will be the next value in the given sequence? That is the sequence prediction, to predict the particular sequence and evaluate that. Like this. This is our model, sequence prediction model. ये क्या होता है बेसिकली, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, डिफरेंट डाटा सेट्स के लिए डिफरेंट हम टेक्निक्स, मॉडल्स यूज करते हैं। ये मैं कितनी बार पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर हमारा मेन मोटिव सिर्फ इतना ही है कि हमारा जो मॉडल है ना, जितने भी हमारे परफॉर्मेंस मैट्रिक्सेस हैं उनके ऊपर एक्यूरेटली वर्क करे, उसमें एरर रेट कम हो, एक्यूरेसी ज्यादा हो, प्रिसीशन वर्क करे, ठीक है, रिकॉल वर्क करे। ये सारे मेथड्स जो है ना हमारे वर्क होने चाहिए एक्यूरेटली, ठीक है? तो वो एक डाटा सेट को डिफरेंट मॉडल्स के साथ लगा के देखना। अब डाटा मेरे पास अगर सीक्वेंस में है, सारा रोल नंबर्स हैं, ठीक है ना, मैंने रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखा है, जहाँ लिखा है जैसे आपकी सीरीज है 60, आपकी सीरीज कहाँ से शुरू होती है? 18 से 18 से, है ना, 18 से शुरू होती है, 1800001। अब 2 भी बता दिया, 3 भी बता दिया। अब मॉडल पूछो कि नेक्स्ट सीक्वेंस का आंसर क्या होगा, दैट इज अ सीक्वेंस मॉडल। उसमें क्या यूज करेंगे हम? सीक्वेंस मॉडल। इट डिपेंड्स अपॉन द डाटा which thing you have to use. Okay, next comes the sequence prediction is also called a sequence learning. This is also technique. Whenever data is in a sequence, then we use the concept of the sequence prediction. Whenever the data is in the sequence order, we use the concept of the sequence learning. Okay, now where is applications? Okay, इसमें एक प्रॉब्लम कहाँ होगी सीक्वेंशियल डाटा? जब सीक्वेंशियल हम प्रेडिक्शन की काम कर रहे हैं तो मेजर चैलेंज किस में होता है? वेयर द प्रॉब्लम अकर इन द केस ऑफ द सीक्वेंस प्रेडिक्शन? कहाँ पे ये यूज नहीं होगी? प्रॉब्लम अकर होती है। यस, आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। Yes. Anyone? मैंने आपको पहले बताया जहां पे whenever the data is in a sequence, in a continuous way, then we use a sequence prediction. But if there is a pattern, if there are images, then there is a problem while using the sequence prediction method. In that cases,
Never try to use this concept. Okay? Yes or no? ओके मैम। Now various applications. weather forecasting में कैसे sequence prediction use हो सकता है? वेदर फोरकास्टिंग में मैं कह रही हूँ कि some example of sequence prediction problems include, ये क्या है? जब मार्केट स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन में ये क्या लिखा हुआ है, इनका क्या मतलब है? मैम सीक्वेंस में नहीं रहती, सीक्वेंस जैसे में वैद नहीं रहती, मतलब जी वही प्रॉब्लम होती ना। यस जी ओके ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये तो हमने आज जो डिस्कस किया है और लास्ट टाइम किया था, दैट इज ऑल अबाउट आवर लर्निंग। लर्निंग में हम कर चुके हैं मल्टीटास्क लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, ensemble learning, and last is a sequence prediction, or we also called is a sequence learning. I think that is clear to everyone. Okay? Yes or no? यस मैम। Okay. नेक्स्ट चलने से पहले एक मैं पोल कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। Then we will move to the next topic. Okay, हरिया बेटा। Okay, I am going to end the poll now. अभी भी 10 स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं।
Okay, tell me what will be the answer? Where we use the ensemble learning? Is it in classification? Is it in regression, or in both cases, or in none of these? I'm in both cases. Yes, we use the ensemble learning in the both cases, in the classification as well as in the regression. Okay. Okay, now let's move to the next thing. Now next is the last topic of our syllabus. ये last topic है, इसके बाद हमारा syllabus खत्म है. Okay, this is our last topic. Afterwards this we will start our programming sessions only, lab part. Now ये हमारा लैब में भी इंक्लूड होगा, तो इसकी बेसिक्स, डेफिनेशंस और टर्म्स क्या हैं वो हम आज डिस्कस कर लेते हैं. नाउ then this is the term of feature selection and the feature scaling. Feature selection, जैसे आप, मैं फीचर सिलेक्शन की बात करती हूँ, जैसे मैं एक यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं. ठीक है, एक टेबल बना लिया मैंने, और वो टेबल जो है ना, दिस इज ए फीचर, बी फीचर, सी फीचर, डी फीचर, एंड दिस इज अ टारगेट. ये मेरे सारे फीचर्स हैं. मतलब एक आईज की डिस्क्रिप्शन का डाटा है, ठीक है, एक नोज की डिस्क्रिप्शन है, एक ईयर्स की डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, एक लिप्स की डिस्क्रिप्शन है, और उससे प्रेडिक्ट करे कि ह्यूमन बीइंग है कि और एनिमल है, एनीथिंग. ठीक है ना, वो टारगेट वैल्यू हमारी यहाँ पे. अब फीचर की सिलेक्शन करनी. अब देखो, हमने जैसे एक्टिव लर्निंग में किया, वी हैव द अनलेबल्ड डाटा, लार्ज अमाउंट ऑफ लेबल डाटा. लाइक सिमिलरली वे, एक प्रेडिक्शन करने के लिए मैंने तो यहाँ पे लिए 1 2 3 4, आई हैव टेकन ओनली द 4 फीचर्स, बट फॉर द वन प्रेडिक्शन there can be multiple features. It can contain the 20 features, it can contain the 100 features. डाटा है हमारे पास, डाटा तो कुछ भी हो सकता है. अगर मैं यहाँ पे 100 रोज कॉलम्स बना दूं और फाइंड आउट करना है कि whether this is a human or animal, that is also possibility. ठीक है ना, ह्यूमन और एनिमल में प्रेडिक्शन करने के लिए, जहाँ वेरियस ह्यूमंस में प्रेडिक्शन करने के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, अलग अलग फीचर्स हैं. ठीक है, अगर हमने एनिमल्स में से कैट, डॉग, लॉयन और भी डिफरेंट एनिमल्स की प्रेडिक्शन करनी है, तो उसके लिए भी फीचर्स है. एंड देयर आर मे बी, एक चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए नंबर ऑफ फीचर्स आर अवेलेबल, बट नंबर ऑफ फीचर्स में से अगर सपोज मेरे पास यहाँ पे 4 है, इट कैन बी 100, इट कैन बी 10, इट कैन बी 20, इट कैन बी 30, इट कैन बी 40. Okay, but by using the concept of feature selection, main motive क्या होता है हमारा, कि हमने जो फीचर्स रिक्वायर्ड हैं और इम्पोर्टेंट है, जिसके जो रिफ्लेक्ट करेंगे किसको, टारगेट वैल्यू को, वो सिलेक्ट. रेस्ट ऑफ विल बी reduced, will be deleted, will be ignored. जो सिलेक्शन, जो फीचर्स डिजायर्ड है ओनली वो ही हम यूज करें, बाकी सबको क्या कर दें, इग्नोर कर दें. दैट इज द फीचर सिलेक्शन, मींस सिलेक्शन ऑफ द वेरियस फीचर्स. Feature selection concept is used for selection of the various features depending upon the requirement, depending upon the target value. Okay. Any table can contain the 100 values, any table can contain 1000 values, but which are the most important, which can provide the more accurate value, that is the relevant. To select that particular features only by using the concept of the feature selection. जब भी कोई भी आप मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हो, सबसे पहले ये वाला भी फीचर सिलेक्शन करते हो. दिस इज ऑल्सो कम अंडर द प्री प्रोसेसिंग ऑफ डाटा. Whenever you do the pre-processing of data, feature selection and the feature scaling also performed. Okay, अब feature selection करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं.
One is the filtering and second is the wrapping. And first is the filtering. Whenever we want to use the feature selection, we can implement the filtering method or we can implement the wrapping method. Okay. अब जो मतलब फिल्टरिंग मेथड है कि हम कह सकते हैं कि एक टेक्निक है और इसको यूज कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द वेरियस स्टैटिक्स मेथड. कई स्टैटिक्स मेथड्स होते हैं, उनको यूज करके ये इंप्लीमेंट करते हैं फिल्टरिंग. ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि फिल्टरिंग यूज होती है, फिल्टरिंग एक टेक्निक है. और ये यूज कैसे होती है, जैसे एक चाय स्क्योर मेथड होता है, अगर आपने मैथ्स में कहीं नाम सुना हो, लाइक दिस CHISQA चाय स्क्योर मेथड यूज होता है, अगर आपने पढ़ा हो. ठीक है, एक अनोवा टेस्टिंग होती है, नोवा टेस्टिंग. दीज आर द स्टैटिक्स, ये स्टैट्स में आते हैं सारे. ये सारे स्टैट्स में मेथड्स आते हैं जिनकी हेल्प से फिल्टरिंग की जाती है जब भी हमने फीचर सिलेक्शन करनी होती है. ओके, whenever we want to use the feature selection by using the concept of filtering, that is performed by these methods, these statics methods. Okay, अब फिल्टरिंग में होता क्या है, फिल्टरिंग में क्या होता है कि सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया 1 2 3 वैल्यूज. ओके, और यहाँ पे टारगेट में मेरा कुछ भी कंटेंट है, जहाँ कोई भी वैल्यू लेती हूँ 100 20 200 300. ओके, ये ले लिया. अब फिल्टरिंग में क्या होता है, पहले तो वो क्या करता है कि फर्स्ट बाय एनी मेथड जो मैंने आपको भी बताए, उनमें से कोई भी मेथड को, जैसे इस मेथड को डिलीट, इस फीचर को उसने क्या कर दिया, इस फीचर को क्या कर दिया डिलीट, इस फीचर को क्या कर दिया डिलीट द कॉलम. आफ्टर डिलीटिंग दिस कॉलम, whether the target value is affected or not, क्या इसमें कोई चेंज आया कि नहीं. ओके, इफ सम चेंज अकर इन दिस, देन दैट रिप्रेजेंट कि वो जो हमने किया है दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर अस, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अस. बट इफ इट डजंट रिफ्लेक्ट, अगर सपोज मैंने डिलीट किया और इसकी वैल्यूज जो है वो 60 तक पहुंच गई, कम हो गई हैं, ठीक है, चेंजेस आ गए आंसर्स में, तो इसका मतलब है कि ये हमारा इंपॉर्टेंट फीचर था. ओके, दैट इज वन थिंग. फिल्टरिंग ऐसे करते हैं, इसको डिलीट करके देख लिया, फिर इसको डिलीट करके देख लिया, मीन्स कि 1 बाय 1 एक कॉलम को डिलीट करके देख लिया, और जिस डिलीशन से कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं होगी, दैट मीन्स वो फीचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड दैट कैन बी ignored by using yes Sukhman, yes Sukhman Preet. मैम एक्चुअली गलती से माइक ऑन हो गया. yes Mani. Sorry ma'am, sorry. बात समझ लगी मैं क्या बोल रही हूँ फीचर सिलेक्शन में? Clear or not? Yes ma'am. Yes, ma'am. Feature selection is basically selection of the various features, okay, which is relevant for the target value, which is required for the target value, and which is not required, that can be deleted or that can be ignored by using the various methods. Okay, that can be used by the filtering के साथ हम feature selection कर सकते हैं. Okay, that is the one thing. Like हमारे पास list of set of all the features are available. हमारे पास set of features हैं, ये in the rows and column, that is set of features. Selecting the best subset means if I ignore this, ये मेरा best subset है, इसके साथ मेरी वैल्यूज में चेंजेस आ रहा है नहीं, तो मॉडल विल लर्न एंड परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस. हमें जो भी पता लगेगा वो कैसे पता लगेगा, थ्रू द परफॉर्मेंस, बाय इवैल्यूएटिंग द एक्यूरेसी, बाय इवैल्यूएटिंग द एरर रेट, बाय इवैल्यूएटिंग द रिकॉल, बाय इवैल्यूएटिंग द मैट्रिक्स जो हमने किए सारे प्रिसिशन, उनको इवैल्यूएट करने के बाद पता लगेगा कि हाँ मेरा मॉडल एक्यूरेटली वर्क कर रहा है अगर मैंने एक फीचर को रिमूव किया है.
और ये फीचर सिलेक्शन जो है वो कैसी होगी, बाय द वेरियस मेथड्स लाइक द टेस्ट मेथड, एनोवा टेस्टिंग, ये सारे स्टैट्स के मेथड्स हैं, इनके थ्रू। समझ लग गया फिल्टरिंग कंसेप्ट? यस मैम। ठीक है, बेसिकली कैसे वो कोरिलेट करते हैं एक दूसरे को। अब सेकंड मेथड जो है हमारे पास फीचर सिलेक्शन का, दैट इज द रैपिंग। रैपिंग अगेन, basically wrapping means we want to wrap some data, we want to wrap 2 columns, we want to wrap 2 features। क्या मतलब इसका? अब देखो, जैसे मेरे पास यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मेरे पास कौन कौन से फीचर्स हैं, ए फीचर है मेरे पास, बी फीचर है मेरे पास, ठीक है, मैंने लिखे सी फीचर अवेलेबल इज विद मी, डी फीचर इज अवेलेबल विद these features are available। ओके, रैपिंग मीन्स फर्स्ट ए के साथ मैच किया टारगेट को, वर्क कर रहा है, चेंजेस तो नहीं आ रहे, दैट इज ओके। नाउ नेक्स्ट, इफ फर्स्ट A will be executed, then it's okay. Then next, wrapping of data means first column and second column will be wrapped. Means various permutation combination concept will be used in the wrapping of data. While using the feature selection, जब हम wrapping of data कर लेते हैं, जैसे अब A B, फिर मैं next लगा दूंगी A B C लगा दिया combination, next लगा दिया A B C D, ठीक है? This is wrapping of data. Wrapping of 2 columns. First column is wrapped, पहले सिंगल कॉलम, फिर उसको B के साथ किया, फिर ABC किया, फिर ABCD किया। ओके, नेक्स्ट हम लगा लेते हैं B, फिर B के साथ कॉम्बिनेशन सारे लगा दिए, फिर D। यस Ma'am, can you repeat this again? Wrapping, because I disconnected just now. Okay. We are discussing the second method of the feature selection, that is wrapping. Okay. In the case Okay, of the ma'am. filtering, we are discussed that we should delete one column and execute the rest of, and then correlate each feature. Okay, wrapping में क्या होता है? Suppose there is data, there are 4 features. मैं 4 features ले रही हूँ, पर एक डाटा सेट के साथ नंबर ऑफ फीचर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है? It can be 100 features, it can be 1000 features, depend upon the data. तो सपोज मैंने 4 फीचर्स लिए हैं, ठीक है? अब रैपिंग में क्या करता है, पहले एक फीचर के साथ टारगेट को वैल्यू करता है एग्जीक्यूट। क्या मेरे से एक फीचर लेने से मेरा एग्जीक्यूट हो सकता है? अगर तो ठीक आंसर देता है, चलो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लगाया। अगर मैं 2 फीचर्स ऐड करूं, क्या मुझे उससे एक्यूरेट मिल सकती है वैल्यू? अगर मैं 3 फीचर लूं, रैप कर रहा हूं, पहले अकेला ए लिया, फिर उसको बी के साथ रैप किया, फिर मतलब रैपिंग मींस कंबाइनिंग, इकट्ठा करना है, फिर सी के साथ कंबाइन किया, फिर डी के साथ, दैट इज रैपिंग। एंड अगेन परमुटेशन कॉम्बिनेशन है बस, कि फिर बी के सारे कॉम्बिनेशन लगा दूंगा, बी के लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे आई विल टेक द बी, ए बी का कॉम्बिनेशन तो हो चुका है हमारा, वी विल टेक बी सी डी, दिस इज अनदर कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन हमारे बन जाएंगे, दैट इज रैपिंग। ओके, पहले ए लिया, फिर ए बी लिया, फिर तीनों को इकट्ठा कर दिया, फिर चारों को इकट्ठा कर दिया, फिर ये दोनों इकट्ठे कर दिए, फिर ये दोनों इकट्ठे कर दिए, वेरियस परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के। आवर मेन मोटिव इज टू गेट द एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, लेस एरर बाय सिलेक्टिंग द एफिशिएंसी, मतलब मेरा सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली वर्क करे। अगर मैं लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स लूंगी, मेरा सिस्टम उतना स्लो चलेगा। एग्री विद मी? Yes, ma'am. अगर मैं यहाँ पे 1000 फीचर ले लूं, तो इस मॉडल को सारे फीचर्स चेक करके फिर ही आंसर बताना पड़ेगा ना, कि ठीक है कि नहीं ठीक है, ठीक है? इसी तरह हमारा फीचर सिलेक्शन क्या होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स which will reflect the output, that will be selected only. Rest can be ignored by using the concept of the filtering and the wrapping. Okay, filtering basically set data, select the best with the formula, send to the model, evaluate the performance. If it accurately work, then it is a good. नहीं तो दूसरा मेथड, फिर दूसरा उसके बाद दोबारा लगाएगा नेक्स्ट फीचर्स के। अब देखो,
इन द केस ऑफ रैपिंग में क्या हो रहा है, डाटा लिया सारा, डाटा सारा ले लिया, अब क्या कर रहे हैं, जनरेट अ सबसेट, generating the subset. Here we are making the subsets na, AB, ABC, ABCD, BCD. We are generating the subset, and on that subsets we are applying the learning algorithm and evaluating the performance. फिर दूसरे सबसेट के ऊपर किया, तीसरे सबसेट के ऊपर किया, like this. Clear? Yes? Any doubt? Yes, ma'am. समझ लग गया? इस तरह हमारा क्या यूज करते हैं हम, फीचर सिलेक्शन. डाटा अवेलेबल है, जो फीचर रिक्वायर्ड है वो ही सिलेक्ट करने हैं, बाकी नहीं यूज करने. तो यूज कर सकते हैं बाय रैपिंग और बाय फिल्टरिंग. एंड इसमें हम वेरियस फॉर्मूलेज यूज करते हैं स्टैट्स की. ठीक है, इसलिए कहा जाता है मशीन लर्निंग आने के लिए आपको स्टैटिक्स आने चाहिए. ठीक है, मैथ्स का सारा डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, ये सब कुछ आना चाहिए. Okay, now next move to the concept that is the last topic of our machine learning, that is the theoretical machine learning का हमारा last topic है theory part का, feature scaling. Feature scaling, feature scaling का मतलब क्या है? Anyone? What is feature scaling? Yes. What is feature scaling? Yes, feature scaling. फीचर स्केलिंग, जैसे हम फीचर सिलेक्शन कर रहे हैं ना, उसी तरह फीचर स्केलिंग कि सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये डाटा विजिबल है सबको? ये डाटा विजिबल है? Yes, ma'am. Yes. Now you can see this is data, okay, which contain the one column location, second column age, third column salary, and last is a bonus. Okay. अब ये तो करेक्टराइज डाटा. ठीक है, इसके वर्क करने के लिए अलग मेथड है. अब अगर मेरे पास न्यूमेरिक डाटा है, बेसिकली अब अगर मैंने कोई भी एग्जीक्यूशन करनी है, जस्ट सपोज अब हम बात करते हैं कि जब भी आप मैथ्स करते हो, आपके पास 3 टर्म्स दी हुई है कि आपने 3 नंबर ऐड करने. एक नंबर आपको मीटर्स में दिया हुआ है, एक आपको सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, एक आपको किलोमीटर्स में दिया हुआ है. 3 नंबर्स. तो आपका पहला स्टेप क्या होता है? You want to add 3 numbers and each number have different units. What is your first step? Unify the units. Unified मतलब एक यूनिट Unify रखना मतलब पड़ेगा, एक बनाना. एक Yes. यूनिट बनाना पड़ेगा. That can be Yes. the kilometers, that can be the सबका एक ही हो जाए, किलोमीटर हो जाए, सेंटीमीटर्स हो जाए, मीटर्स हो जाए. Yes or no? Similarly, while evaluating or working on some data, you have to do the scaling of the data. So the data should be in the same region. Like age है, age की डाटा क्या है? Between the 1 to 100 के बीच में लाई कर रहा है. और ये सैलरी जो है that is lying between the thousands. ओके, अगर आप इसका ग्राफ बनाना शुरू करोगे तो इसकी वैल्यूज जो है बहुत डिफरेंट लोकेशंस पे आएंगी. बोथ आर इंडिपेंडेंट, है ना. अब मीन्स अब इस डाटा की मैं क्या करना चाहती हूँ, स्केलिंग. मीन्स आई वांट टू नॉर्मलाइजेशन. आप डाटाबेस में नॉर्मलाइजेशन करते हो ना, इन RDBMS you use the normalization concept. Yes. Yes, ma'am. क्या होता है वो नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट? व्हाट इज द नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट इन RDBMS? Yes, anyone tell me what is the normalization in RDBMS? आप सबको आना चाहिए, अब तो आप प्रेपरेशन कर रहे हो प्लेसमेंट्स की. Yes. Anyone? What is normalization?
Ma'am, I think it was related to relation. I forgot. Yes, Ritika, Yes, ma'am. what is normalization? Ma'am, normalization basically means that we structure the data so that there is reduced redundancy and also the data is integral. Yes, कि हम उसको इस तरह करते हैं ताकि हमारी सारी क्या है, एरर्स, Integrity maintained. इंटीग्रिटी Yes. मेंटेन कर सके उसकी सारी, है ना। तो उसी Yes. तरह हम इस डाटा को भी क्या करना चाहते हैं, नॉर्मलाइज विद इन द फीचर स्केलिंग की हेल्प से हम डाटा को क्या करना चाहते हैं, नॉर्मलाइज। ओके, वी वांट टू नॉर्मलाइज दिस, और वी कैन डू दिस फीचर स्केलिंग बाय टू वेज। वी कैन डू फीचर स्केलिंग. Feature scaling can be done with the two methods. One is the standardizing and second is the normalization. ठीक है, जहां पे भी हमें डिफरेंट रेंज ऑफ डाटा आ जाता है, डिफरेंट रेंज इन द केस ऑफ द न्यूमेरिक डाटा, ये रेंज अलग है, दिस इज बिटवीन द 0 और 1, 0 to 100 है, ये रेंज अलग है थाउजेंड्स में। अब इन दोनों की स्केलिंग करनी ताकि ये एक दूसरे पे वर्क कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एनी मेथड कैन बी यूज्ड। नाउ कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, सबसे पहले फीचर स्केलिंग आपको, जैसे डाटा है, एक एप्पल बड़ा दिया है, एक एप्पल छोटा दे दिया, इसी तरह एक स्ट्रॉबेरी छोटी है, एक बड़ी है। अब जब सिलेक्शन करनी है, डाटा जो है सेम लेवल का होना चाहिए, तो सबको क्या कर देना है, एक साइज का, सबको क्या कर देना है, एक साइज का, ताकि फीचर और प्रेडिक्शन करने में करेक्ट प्रेडिक्शन हो सके, ठीक है ना। अगर मैंने एक बड़ा एप्पल दे दिया, अब मशीन सोचे ये पता नहीं क्या है, बड़ी साइज है, इसका साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा है, आपने एप्पल के फीचर्स का दिया है वो इतने साइज का है, और यहाँ पे साइज उसका बड़ा हो गया, चाहे एप्पल है, तो वो तो प्रेडिक्शन रॉन्ग कर सकता है, इट कैन गिव द रॉन्ग प्रेडिक्शन, यस और नो। Yes, ma'am. Similarly, in the case of strawberry में you have given the features of the like this size, this color, this way, तो वो दिया है, और उसके बाद आप फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हो एक साइज थोड़ा बड़ा दे दिया आपने, इमेज बड़ी दे दिया, तो वो रॉन्ग प्रेडिक्शन करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्केलिंग। स्केलिंग मीन्स वी विल स्केल द होल डाटा, वी विल नॉर्मलाइज द होल डाटा सो दैट एरर और प्रेडिक्शन जो है हमारी करेक्ट हो सके। In each case, in each way, we want to predict the we want to do the correct prediction. We want accurate result. Okay, this is the last and the main motive in each and every case, to get the correct prediction. Whether while using this feature selection, whether by using the feature scaling. Now, कैसे करते हैं स्केलिंग, मैंने टेक्निक्स बता दी आपको, स्टैंडर्डाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन में जो वैल्यूज लाई करेंगी ना, जब मैं नॉर्मलाइजेशन कर दूंगी ना, तो नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जितनी भी मेरी वैल्यूज है दैट विल बी लाई बिटवीन द 0 to 1। एंड नॉर्मलाइजेशन में हम कंसेप्ट कहते हैं मिन मैक्स स्केलिंग, दिस इज कॉल्ड मिन मैक्स स्केलिंग, मिन मैक्स स्केलिंग। नाउ दिस इज अ फॉर्मूला इज विजिबल टू एवरीवन, formula Yes, is ma'am. visible to everyone, okay good। Yes, ma'am. मैं हाँ देखो x, this is a formula equal to x minus x min, ठीक है, min मैंने ले लिया ऐसे, divided by, we have to take the brackets also, now x max minus x min, okay, this is our formula। now हमारे पास ये डाटा सेट अवेलेबल था, ये डाटा सेट अवेलेबल है, यस। इस डाटा सेट के ऊपर हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू डू द स्केलिंग, वी वांट टू डू द स्केलिंग ऑफ दिस डाटा सेट। कौन सा था, ये डाटा सेट है ना, वी वांट टू डू द स्केलिंग ऑफ दिस डाटा सेट। स्केलिंग मीन्स
कि डाटा सेट के जितनी भी वैल्यूज है वो सारी 0 और 1 के लाइन लाई करे, ताकि वो इजिली वर्क कर सके। ठीक है ना, किसी की वैल्यू कुछ है, किसी की वैल्यू कुछ है, तो वो डिफरेंशिएट है, तो उसको एक ही लेवल में लेके आने के लिए हमने क्या कर दिया, नॉर्मलाइजेशन। वी हैव यूज्ड द नॉर्मलाइजेशन। क्या किया, पहले इसकी नॉर्मलाइजेशन की, फिर इसकी नॉर्मलाइजेशन की, डिपेंडिंग अपॉन द डाटा सेट। समझ लग गई बात? अभी तक जो बोला क्लियर हुआ वो? मैम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं? हाँ, ये हम यूज कर रहे हैं, और यूजिंग हमने कहा है कि हमने स्केलिंग करनी डाटा की। वी वांट टू डू द स्केलिंग ऑफ द डाटा। Scaling of the data can be done by two methods, by the normalization or by the standardization. First, I am using the normalization concept. And for implementing the normalization, we use this formula. This is called a min-max scaling. This is also called a min-max scaling. Min-max scaling. Okay, हम इसको min-max scaling भी बोलते हैं। अब समझो ध्यान से। I want to update this value. I want to update this value. तो अब मुझे अपडेट करनी है कोई पर्टिकुलर वैल्यू। I want to update 27 या 44 ले लेते हैं ना, 44 लेनी है। I want to update the 44 वैल्यू। ओके, आप सब मुझे बताओ, what will be the x? What will be the x? x क्या होगा? I want to, इस जो मेरे पास ये कॉलम है, इसमें से मैंने अभी जो डिस्कस करने लगी हूँ, मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ। I want to normalize this value. With the help of normalization, our value will be lie between the 0 and 1. और ये वैल्यू को नॉर्मलाइज करना है, तो वो कैसे कर रही हूँ मैं? थ्रू द फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को मैं लगाने लगी हूँ, और आप मुझे बताओ अब x क्या होगा? What will be the x? 44। x will be 44। ठीक बोल रहा है मनी? Yes, anybody else? मनी ने ठीक बोला है? नैन्सी? गुरलीन? खुशप्रीत? सचिन? बेटा अगर आपने सुनना ही नहीं है तो क्लास लगाने का क्या मतलब है? वही बात है जो क्लास में करते हो, अटेंडेंस के लिए हम आते हैं। ओके, लिसन केयरफुली व्हाइल मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट आपकी फ्राइडे को लैब आ रही है। ओके, फ्राइडे को आप सबकी क्या है? मशीन लर्निंग की लैब। यस और नो? Yes, ma'am. यस। जो नहीं सुन रहे उनको भी सुना देना। फ्राइडे Okay, को ma'am. लैब आ रही है, और फ्राइडे को मैं आपको पहले डेमोस्ट्रेट करूंगी कंसेप्ट को, और आप सबने अपने सिस्टम्स में पाइथन इंस्टॉल कर लो, एनाकोंडा इंस्टॉल कर लो, जो भी आपने आईडी यूज करना है वो इंस्टॉल कर लो। और फर्स्ट हाफ एन आवर आई विल एक्सप्लेन, पहले हाफ एन आवर जितना भी टाइम है मैं एक्सप्लेन करूंगी, कंसेप्ट आपको बताऊंगी जैसे लैब में करते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स I will give you the 15 to 20 minutes, and then afterwards I will call the students by the name, और वो स्क्रीन शेयर करेगा, और स्क्रीन शेयर करके जो उसने प्रोग्राम्स बनाए वो इम्प्लीमेंट करेगा, और उसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स के नंबर लगेंगे। मैं आपको ये बता रही हूँ, जो लैब के नंबर है उसके अकॉर्डिंग ही लगेंगे आपकी, ऑफ द इंटरनल लैब। एक्सटर्नल लैब के लिए तो आपका प्रोजेक्ट है, फॉर इंटरनल लैब वो आपका इसी थ्रू होगा, थ्रू योर परफॉर्मेंस। ओके, वैसे हमारा अब तो Okay. सिलेबस ही खत्म हो गया, हम तो लेक्चर में भी ऐसे ही करेंगे।
Now we are going to move the practical part only. अब हमने प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर ही काम करना है. ओके मैम. ठीक है, और प्रैक्टिकल पार्ट में दोनों तरफ से काम होगा. ओके मैम. ओके ओके सागर, आप बताओ बेटा, व्हाट विल बी द एक्स मीन नाउ? एक्स मीन क्या होगा? और मैंने कुछ भी सुनना नहीं है कि मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा, मेरा वो नहीं चल रहा. ओके, हम भी लेक्चर्स घर से दे रहे हैं और ऐसी कोई इश्यूज नहीं आती है अगर आपका दिल करे तो. ये सारे आपके एक्सक्यूजेस होते हैं. इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने नंबर लेने कि नहीं लेने. Yes, Rahul, what will be the next X mean? टेबल में से आई थिंक जो छोटी वाली है हाँ, क्या होगा? जो ये टेबल है ना डेटा में से म्यूट कर लो उधर. राहुल हो गया. रजत. Yes, ma'am. Rajat, what will be the X mean? Yes, ma'am. Ma'am, I think 27. Yes, that will be the 30. डाटा सेट पूरा का पूरा है. उसमें से मैं 44 के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहती हूँ. That will be our 44. X min will be the 27. Then what will be the X max? X max क्या होगा? 90. 90. And what will be the X min again? 27. 27. Evaluate करो इसे. कैलकुलेट करो अपने, evaluate करो उसके ऊपर. कैलकुलेट के ऊपर आंसर बताओ मेरे को. Tell me the answer. .26. 0.26. Okay, 0.26. That is the answer. Let's see now. You can see here. Normalization हुई है by using this formula, and we get the first value with that of the 0.26. Okay. In this case, all the value will be lie between the 0 or 1. All the value will be lie between the 0 or 1. Clear to everyone about the concept of normalization? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear? In this way, we can use the scaling of the data. Scaling of data कर रहे हैं हम ताकि हमारा डाटा जो है इम्प्लीमेंट एफिशिएंटली हो सके, एक्यूरेटली और करेक्टली वर्क कर सके. ओके, पता लग गया ना स्केलिंग क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको एग्जांपल बताई वो एप्पल वाली. अगर आपका साइज डिफरेंट होंगे, देयर कैन बी चांसेस ऑफ द एरर. मशीन कैन will give the wrong prediction if there is a changes in the value, if there is variation, large variation in the values. If there is large variation in the values, if there is large variations in the value, the machine can give the wrong prediction. But with the help of the scaling, it will lie between the some particular range. Normalization करने से, standardization करने से वो एक particular range में रहेगा और range से उसको prediction करना more करेक्ट से करेगा, एक्यूरेटली करेगा. पता लग गया ये कंसेप्ट पहला नॉर्मलाइजेशन का? Yes, ma'am. Yes. Similarly, second comes the standardization. That will be, उसके लिए हम यूज करते हैं, नॉर्मलाइजेशन बता दिया, उसकी वैल्यू 0 और 1 के लाई बेच करती है. सिमिलरली जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसकी जो वैल्यूज है वो लाई करती है हमारी, दैट लाइज बिटवीन द -3 to +3. That lie between the -3 to +3. ओके, इनकी वैल्यूज लाई करते हैं किसके अंदर? -3 to +3. एंड वैल्यू फॉर्मूला इज, दिस इज द फॉर्मूला.
ये आपके सामने जो लगा है, स्क्वायर रूट summation x minus x bar. What is x? What will be the x? x क्या होगा? What will be the x? उस ऊपर वाले केस में ही जो चेंज करना है, जो हमने चेंज करना है, और x बार क्या है? What is x bar? मीन मीन। मीन 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 यस सबका सम निकाल के उसको क्या कर दिया? n से डिवाइड कर दिया, and square of that n minus 1. n means number of terms and minus 1. This is formula, second method of the feature scaling. And इस feature scaling को लगे हमारा दूसरा टेबल क्रिएट हो जाएगा, ये वाला जब हमने ऊपर किया, ये हमारा इसके लिए, इस सारे के ऊपर क्या लगा है? नॉर्मलाइजेशन लगी है, और ऊपर वाले के ऊपर लगाई है हमारी स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, और आप देख सकते हो इसकी लाइज कर रही है वैल्यूज बिटवीन द -3 to 3, and the values are lying between the -3 to 3. Clear? समझ लग गया कंसेप्ट? Yes or no? Yes, ma'am. Why we use the scaling? Why we use scaling? एक्सक्यूज मी मैम, Yes, Rahul. मैम इसकी वैल्यू -3 और 3 में क्यों लाइज करती है इसकी वैल्यू? स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहे हम, स्क्वायर रूट भी निकाल रहे हैं और उसके ऊपर वैल्यूज भी तो है। ये देखो बेटा, जो वैल्यूज है यहाँ पे मीन बात नहीं आ रहा, ओके मैम, कैलकुलेट करके देखना, आंसर आ जाएगा ठीक आपका। ठीक है मैम। चेक कर लेना, आपको मैं ये डॉक फाइल भेज दूंगी, आप कैलकुलेट करके वैल्यूएट करके देख लेना, ठीक है? ओके मैम। Why we use the concept of scaling? मैम डिस्टेंस फाउंड आउट करने के लिए बिटवीन 2 points, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। मीन ठीक बोल मैक्स। रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं हम। यस, मैम जो ब्रॉड रेंज ऑफ डेटा है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, सो दैट वो Yes. थोड़ी कम रेंज में है। यस, ताकि हम क्या कर रहे हैं, इफ वी कंटेन द डाटा सेट विच कंटेन द लार्ज रेंज, मींस कि एक डाटा जो है वो हमारा उसकी वैल्यू 10 है, और एक डाटा जिसकी वैल्यू 1000 है, ठीक है? तो इतना डाटा, इतनी वेरिएशन है, उस वेरिएशंस को हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? रिड्यूस, एंड ट्राइंग टू लाई बिटवीन सम पर्टिकुलर रेंज विद द कंसेप्ट ऑफ द फीचर स्केलिंग, so that machine can able to predict the correct, give the correct prediction or give the accurate prediction. Okay, clear to everyone? Yes, ma'am. Yes. समझ लग गया? ओके, चलो नेक्स्ट पोल कर लेते हैं पहले, लेट्स मूव द नेक्स्ट पोल।
Okay, students, what will be the answer? Students, what is the answer of the poll? Active learning. Active learning. Active learning. Answer is the active learning only. Okay, that is the answer. Now I am going to share the syllabus. Let's move from the last part. Reinforcement सबको पता है. What is reinforcement learning? Reinforcement learning क्या होता है? Reinforcement learning. मैम सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड का कॉम्बिनेशन. सुपरवाइज अनसुपरवाइज का कॉम्बिनेशन. इसमें क्या होता है? दैट इज When अवार्ड. in हाँ, a ये machine is awarded for अवार्ड every मिलता है और इट लर्न फ्रॉम. right answer. वो अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से लर्न करती है मशीन. When machine learn from its self experiences, okay, that is called the reinforcement learning. Deep learning में हमने स्टार्टिंग में कर लिया हुआ कंसेप्ट. ओके, डीप लर्निंग के ये न्यूरल नेटवर्क आ गया, ये सारे इसके अंदर ही आते हैं. एक्टिव लर्निंग डिस्कस कर चुके हैं हम. डाटा स्ट्रीम्स. डाटा स्ट्रीम इज बेसिकली द फ्लो ऑफ डाटा इन द केस ऑफ सीक्वेंस प्रिडिक्शन. वो चीज है. ओके, सीक्वेंस प्रिडिक्शन आ गया, कर लिया हमने. ऑनलाइन लर्निंग कर लिया है. मल्टीटास्किंग हो गई, बैगिंग बूस्टिंग हो गई. ये सारा हमारा डिस्कस हो गया इस बार और लास्ट लेक्चर में. यस और नो? क्लियर? Yes, ma'am. बैक प्रोपगेशन कर चुके हैं हम. परसेप्ट्रॉन्स, ये छोटे छोटे टॉपिक्स उसके साथ ही रिलेटेड हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं. ओके, इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं. मॉडल रिप्रेजेंट कैसे हमारा न्यूरल नेटवर्क बनता है. परसेप्ट्रॉन क्या होता है, उसका ग्रेडियंट डिसेंट के साथ क्या रिलेशन है, ये सारा डिस्कस कर चुके हैं हम. ओके, देन आफ्टरवर्ड्स हमने रेगुलराइजेशन कर ली है. कर ली कि नहीं? रेगुलराइजेशन अगर किसी को याद हो, लासो, रिज, L1, L2, दैट इज द रेगुलराइजेशन. बायस एंड वेरिएंस के साथ रिलेट करके ओवरफिटिंग, ये सारा उसके पार्ट में डिस्कस किया था हमने. ठीक है, लॉजिस्टिक भी हम कर चुके हैं, उसके सब पार्ट्स भी डिस्कशन हो चुकी है. और ये एक टॉपिक आता था फीचर सिलेक्शन का और स्केलिंग का, वो हम कर लिया. हमारा सिलेबस मशीन लर्निंग का अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल पार्ट वो खत्म हो चुका है. क्लियर? क्लियर? यस? एनी डाउट? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन बाय एनी स्टूडेंट? नेक्स्ट से अब हम प्रैक्टिकल वर्क पे चलेंगे. ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड वी विल मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट. तो मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्रैक्टिकल पार्ट में अकेले मैंने काम नहीं करना. यू ऑल्सो हैव टू ओपन योर सिस्टम्स. इफ यू हैव पाइथन और एनाकोंडा देन इट्स ओके. अगर नहीं इंस्टॉल्ड है, इंस्टॉल दैट एंड देन वी विल एग्जीक्यूट द कोड. उसका कोई फायदा नहीं है मैं यहाँ पे लिखती जाऊंगी, करती जाऊंगी और आप कुछ नहीं करोगे. ओके, व्हाट अबाउट द असाइनमेंट्स? यस सिमरन, व्हाट अबाउट द असाइनमेंट्स? सेकंड असाइनमेंट सबमिशन. यस, सेकेंड असाइनमेंट के सबमिशन अभी तक हुई नहीं है मेरे को. यस, हाँ मैम रितिका, आपने डेट नहीं मेंशन करी सेकेंड असाइनमेंट की. डेट नहीं मेंशन, महीना हो गया है. यस मैम. ओके, हमारा सिलेबस तो खत्म हो चुका है. तो हम आज क्या है, सेकेंड असाइनमेंट तो सबकी बन गई हुई है. तो यस मुझे रितिका सिमरन को बोल के, सिमरन यस मैम. अपना एक गूगल फॉर्म बना के उसमें अपलोड करवा लो सारी असाइनमेंट्स. असाइनमेंट ओके 2 मैम. ओके मैम. सभी स्टूडेंट्स अपने सेकेंड असाइनमेंट सिमिलरली से इसी के CR भी बेटा
ओके, Yes, ma'am. गूगल फॉर्म बना के Okay. उसमें अपलोड कर दो और मुझे वो सेंड कर दो। ओके Okay, ma'am. कब तक करनी है मैम? सेकेंड असाइनमेंट को बहुत हो गया टाइम दिए हुए, कल सबमिट करो। ठीक है। और ma'am. और वैसे तो मुझे लग रहा है मैं टाइम भी देती हूँ साथ में, ऐसे नहीं होता कि बिना टाइम के हम डिस्कस खत्म कर दें बात। ओके, और व्हाट अबाउट द थर्ड असाइनमेंट नाउ? थर्ड असाइनमेंट का भी कर लें अब। टेल मी द डेट, आप बता दो डेट उस दिन। मैम फ्राइडे। फ्राइडे, आप मंडे ले लो। मंडे, व्हाट इज डेट नेक्स्ट मंडे? व्हाट इज द डेट एट द, ओ डे, मंडे को डेट कौन सी है? दैट इज 10th, है ना? 10th Yes, ma'am. को 10th 10 में 10 10th को आपने सेकेंड लिंक सेंड कर देना है CRs, मैम ओके 10 मैम। और हम 2 दिन वेट करेंगे और थर्सडे को लॉक करेंगे असाइनमेंट थर्ड का। ओके मैम। तीनों असाइनमेंट्स का काम भी खत्म हो जाए, ठीक है? आई वांट कि नेक्स्ट क्लास आने से पहले हम थ्योरी पार्ट का सारा काम खत्म कर दें, असाइनमेंट्स का भी हो जाए और ये भी हो जाए। देन आफ्टरवर्ड्स हम प्रैक्टिकल पार्ट पे चलेंगे, प्रैक्टिकल फाइल्स, प्रैक्टिकल डिस्कशन एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स जो आपके हैं। ओके, हम सेकेंड असाइनमेंट की सबमिशन आज है? कल लास्ट इज, कल लास्ट डे इज टुमारो। ओके। ओके, टुमारो इज लास्ट। And the third assignment submission date, last date is 10th. ठीक है? Now, any question or any query by any student? No? Assignments की पता लगी डेट सबको? और EC के स्टूडेंट्स, आपके अभी तक प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स में तो सिर्फ 2-3 बच्चों की ग्रुप्स की आई हैं, बाकी की किसी की नहीं आई। और अब हमारी क्लास में कोई चेंजेस नहीं होंगे। सिमरन, जो लिस्ट आ चुकी है वो लास्ट अपडेटेड लिस्ट है। मैम फाइनल अगर प्रोजेक्ट्स में करना क्या क्या है? फाइनल प्रोजेक्ट्स में मैंने आपको एक दिन क्लास में पहले भी बताया था। मैम मैंने आपको बोला था वो शेयर करने के लिए, आपने कहा था मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। शेयर मेरे दिमाग से निकल गया। शेयरिंग क्या करना है हमने फाइनल प्रोजेक्ट्स में? फर्स्ट, टेक द रेलिवेंट डाटा, टेक द डाटा विच इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू योर, ठीक है? सबसे पहले तो आपने क्या करना है, चूज द एल्गोरिथम जो आपने अपने प्रोजेक्ट में लिखा होगा, जो आपने प्रोजेक्ट लिस्ट में दिया होगा ना, वो एल्गोरिथम चूज कर चुके हो। आपका पहला स्टेप हो चुका है, आप सबने पहला स्टेप कर लिया है। ओके, अब उस एल्गोरिथम के बाद डाटा टेक लो विच इज अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली हो। देन आफ्टरवर्ड्स उस डाटा की क्या करनी है, डाटा की प्री प्रोसेसिंग करनी है, जो हम नेक्स्ट लैब में करेंगे। डाटा की प्री प्रोसेसिंग करनी है, जो डाटा लोगे आप रेलिवेंट टू योर प्रोजेक्ट। डाटा की प्री प्रोसेसिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, बोलो, टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? We had already discussed in the class. First, choose the algorithm, take the Yes. data. And its Now? performance metrics. Performance. We want processing. Performance metrics तो तभी होगा ना, पहले हमने क्या करना है, Apply करेंगे. अप्लाई करना है क्या, एल्गोरिदम, एल्गो अप्लाई करना है, एल्गो अप्लाई करना है। और एल्गो अप्लाई करने के बाद उसके बाद क्या करनी है, उसकी ट्रेनिंग देनी है, ट्रेन करना, और उसमें क्या करना है, टेस्ट करना है। देन आफ्टरवर्ड्स परफॉर्मेंस मैट्रिक्स करनी है एक्यूरेसी चेक करने के लिए, परफॉर्मेंस चेक करनी है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। ठीक है? फिर उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है, Yes. ठीक है? और
विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा में Visualization. विजुअलाइजेशन मैटप्लॉटलिब यूज करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये काम है आपका। प्रोजेक्ट हमारे कोई टफ नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कैसे एग्जीक्यूट करना है और क्या हो। ठीक है, दिस इज आवर स्टेप्स व्हाइल मेकिंग द प्रोजेक्ट। एक हार्डली आपके 15 से 20 या मैक्सिमम 30 लाइंस का कोड हो सकता है, मैक्सिमम, अगर आप कुछ ज्यादा इंट्रोड्यूस करते हो, इससे ज्यादा कोड नहीं होगा। बट ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, ट्राई क्या, खुद ही करने की कोशिश करो। ठीक है, these are the various steps which are used, which will be used while designing an project. कोई भी आपने एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए आपने यही सारा कुछ करना है। क्लियर? यस। Yes, ma'am. आप आपकी क्लास के स्टूडेंट्स, इसी स्टूडेंट्स, मुझे प्रोजेक्ट दो जल्दी से, डिटेल्स अभी तक नहीं आई है आपकी। मैम बाकी बच्चे दे नहीं रहे, 3 ग्रुप्स में दे दिए, बाकी कह रहे हैं हम सोच रहे हैं, हमारा डिसाइड नहीं हुआ अभी कोई। तो फिर सारा सेमेस्टर सोचते रहे, इतना क्या सोचना है? इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? भी यस जिन्होंने ना दिया उनकी लिस्ट मेरे को भेजो आज। यस मैम, मैं भेज देती हाँ, मुझे आज नाम भेजो उनके जिन्होंने दिया नहीं अभी तक। हूँ। ओके, सिमरन हमारी क्लास में सबने दे दिए हुए नाम? यस मैम। ओके, गुड। ओके स्टूडेंट्स, देन यू कैन लीव नाउ। आई थिंक मेरे ख्याल से कोई अब किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ क्लियर है। एंड नेक्स्ट वीक अपने सिस्टम्स में पाइथन के साथ इंस्टॉल करके लेके आना। मैं आप सब में किसी को भी बोल दूंगी कि अपनी स्क्रीन शेयर करो, और जिसने स्क्रीन शेयर नहीं की, उसी तरह जैसे हम एवेल्युएशन करते हैं ना लैब की, उसी अकॉर्डिंग नंबर लगेंगे। ओके, एक्सक्यूज मी मैम, यस मनी। मैम वो फॉर्मूला क्या था वो स्टैंडर्डाइजेशन का? मैं आपको वो सेंड कर देती हूँ डॉक फाइल। ओके मैम, ओके, ठीक है। ओके मैम। अभी अभी किसी को प्रॉब्लम है, उस दिन मेरे को कोई नहीं बोलेगा कि मैम मेरा ये एक्सक्यूज है, मेरा वो एक्सक्यूज है। अगर अभी कोई प्रॉब्लम है तो अभी मुझे बता दो। हमारा फ्राइडे को लैब है, अभी आपके पास वेडनेसडे थर्सडे भी है, 2 दिन है। ओके ओके एवरीवन। मैम आपके पास हेलो, यस मनी। मैम वो पांडा साहब ने करवाया था ना लैब में, जिसके उसकी डॉक फाइल होगी, मतलब वो इम्प्लीमेंट करना है थोड़ा बहुत किया। ठीक है बेटा, उसकी भेज दूंगी आपको। ओके मैम, हाँ, ओके मैम। पांडास को भेज दूंगी, और हमने मैटप्लॉटलिब भी किया था, उसका भी कर लें। उसका तो हमने जावा पॉइंट से कर लिया था। जी भेज दूंगी आपको मनी, वो भी भेज देती हूँ ग्रुप में। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, एनीथिंग एल्स? No issue? No query? ma'am. Okay, then you can leave. Okay, students. Thank you, ma'am. Okay. थैंक यू मैम। थैंक यू Thank you, ma'am. Welcome.